Welcome students, and today we are going to start our second exercise of chapter 5th, that is understanding elementary shapes, and we will discuss about angles, some special type of angles. You all have already studied that angle has been formed with the intersection of two rays. So we get the angle where it is angle. Now we will study some special type of angle. One is right angle. क्या पढ़ेंगे हम लोग? Right angle. Second one is straight angle. Third one is complete angle. We are going to study these angles in this class. Okay, so we have got four directions. Let us see if we are standing in such a way. हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और इस तरफ देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, एंड इफ वी टर्न अराउंड, मतलब अब हम इधर देखने लगे, मतलब इट मीन्स वी आर स्टैंडिंग सच अ वे दैट वी आर वॉचिंग in one direction, and we turn around and start watching in this direction, then this turning means right angle. This turning means right angle. This turning means right angle, one right angle. It means if you are watching in this direction and if you turn this way, this is again one right angle. You are watching this way और आप इधर देखने लगे, ये भी राइट एंगल हो गया. आप इधर वो देख रहे हैं, इधर टर्न हो गए, ये भी राइट एंगल हो गया. आप ये देख रहे हैं, इधर टर्न हो गए, ये भी राइट एंगल हो गया. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वन राइट एंगल. व्हाट? वन राइट एंगल. Right angle. In this video, in this example, we have turned around for one right angle. What does it mean? If I am standing in such a way, facing towards one direction, and I turn this side and again turn this side, then this is two right angle. Okay. Similarly I erase some. Similarly, if I face this side, I turn one, I turn again, and I turn again. Then this is इतना टर्न हुआ है. This is three right angle. Now, अगर मैं यहां से फेस करके खड़ा हूं, I turn one right angle, again right angle, again right angle, and again right angle. Means how much turn we have got? Four right angle. Four right angles. So you have got clear cut idea that when we see in one direction and turn in such a way, तो अगर मैं सामने की तरफ देख रहा हूं और एक टर्न लेता हूं लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तब मैं 90 डिग्री टर्न करता हूं. मैं इस तरफ देख रहा हूं और एग्जैक्ट बिहाइंड पीछे आ जाता हूं, तो मैं क्या कर देता हूं,
इट मीन्स मैंने 2 राइट एंगल टर्न ले लिए हैं. ओके, सो वी हैव गॉट क्लियर कट कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल. आपने देखा, you have seen, when we are talking about the two right angle, when you are talking about the two right angle, जब टू राइट एंगल लिया तो हम इधर देख रहे थे, अब हम इधर देख रहे हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट एंगल. विच एंगल? स्ट्रेट एंगल. ओके, एंड सिमिलरली हम जहां पे थे, आफ्टर 4 राइट एंगल वी आर एट द सेम स्टेज, बट वी हैव कंप्लीटेड 1 राउंड. 1 राउंड, दिस एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. और कंप्लीट एंगल में वी हैव मेक 1 रिवोल्यूशन. हाउ मेनी रिवोल्यूशन? 1 रिवोल्यूशन. हमने एक रिवोल्यूशन पूरा बना लिया है, एक सर्कल, 1 रिवोल्यूशन. और इसमें कितना बना लिया हम लोगों ने? हाफ रिवोल्यूशन. इसमें हमने हाफ रिवोल्यूशन बना लिया है. अच्छा, और इसमें हम बात करेंगे तो 3 राइट एंगल में क्या बना लिया है हम लोगों ने? हम लोगों ने बना लिया है आधा, आधे से ज्यादा और 1 से कम, मतलब 3/4 रिवोल्यूशन. बात करा जाए तो इसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, इसका पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है. ओके, सो वी कम टू नो दैट राइट एंगल इज 1 टर्न. 1 टर्न, राइट एंगल इज 1 टर्न फ्रॉम 1 डायरेक्शन टू अनदर. ऑल्सो सो मैं इसको मिटा रहा हूं अभी. नाउ let us understand these angles in terms of what direction. If this is north, it means this is south. This is east and this is west. So when we turn north to east, we are standing in such a way that our face is at in the direction of north. Or when we turn around facing towards east, ऐसे करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एक राइट एंगल मिलेगा, 1 राइट एंगल. सिमिलरली इफ वी फेस टूवर्ड ईस्ट, यहां से हम लोग साउथ की तरफ जाते हैं, सेम साउथ की तरफ खड़े हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, अगेन सेम, और वेस्ट से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो भी सेम, 1 राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, इन ईच ऑफ द केस वी आर टर्निंग इन दिस डायरेक्शन, in this direction, and if we compare this movement with the help of our clock. ये क्लॉक है, ये हॉर एंड है और ये मिनट एंड है. तो आपने देखा, ये अगर क्लॉक है तो हमारी हॉर हैंड हमेशा, हमारी हॉर हैंड है घड़ी में इस तरीके मूव करती है, मिनट हैंड मतलब इस डायरेक्शन मूव करती है, ये सेम है. सो व्हेन वी मूव एज पर द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स यहां पे जब हम लोग क्लॉकवाइज टर्न किया, हमने नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, तो हमको 1 राइट एंगल ट्रायंगल मिला. पर क्या अगर मैं नॉर्थ से वेस्ट जाता या वेस्ट से साउथ जाता या साउथ की तरफ मेरा मुंह होता, मैं ईस्ट की तरफ जाता, और आई एम स्टैंडिंग फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड नाउ आई गो टुवर्ड्स नॉर्थ,
ये भी तो वन राइट एंगल ट्रायंगल ही मिल रहे हैं, बस अंतर क्या है, यहाँ पे मैं इस तरफ करके खड़ा था फेस, मैं इधर टर्न हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं इस तरफ फेस करके खड़ा था, मैं इधर टर्न हो गया। ओके, नाउ इन दिस नॉर्थ टू ईस्ट यू सी दैट वी आर मूविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बट यहां पे हम क्लॉक के अपोजिट मूव कर रहे हैं। देखो कैसे मूव कर रहे हैं, घड़ी हमारी ऐसे मूव करती है तो हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं घड़ी के उल्टा मूव करूं, इफ आई मूव अपोजिट टू क्लॉक, मतलब हम अगर इस तरीके से मूव करने लगे, इस तरीके से मूव करने लगे, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं अपोजिट मूव करने लगूं तो हम बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो ये आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, ये डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। यहां पे दो चीजें, एक और चीज आई, ये हम लोग क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक, तो मैं राइट एंगल को कैसे बोल सकता हूं? टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट, और टर्निंग क्या बोल सकता हूं? ऐसे ही मैं एक लिख के दिखाऊंगा। वन राइट एंगल मीन्स टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट और नॉर्थ टू वेस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट। देखो, राइट एंगल मीन्स टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट, मीन्स मैं नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा था और मैं ईस्ट की तरफ घूम गया। ठीक, ये नॉर्थ था, मैं ईस्ट की तरफ घूम गया। अच्छा, मैं नॉर्थ की तरफ खड़ा था फेस करके और मैं वेस्ट की तरफ घूम गया। ये दोनों एग्जांपल क्या है? वन राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। और स्ट्रेट एंगल हम क्या करेंगे? स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे तो टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट एंड ईस्ट टू साउथ। तो हमने क्या, कितने टर्न लिए? 2 टर्न। कितने टर्न लिए? 2 राइट एंगल टर्न। 2 राइट एंगल टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। 2 राइट एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और हम ये भी बोल सकते हैं नॉर्थ टू साउथ। देखो, नॉर्थ टू साउथ हमने बोला है, तो इसमें एक चीज क्लियर नहीं हो पा रही है। क्या चीज क्लियर नहीं हो पा रही है? नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं, ये सोचना आप लोग। कैसे भी जा सकते हैं, जैसे मीनिंग टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट और नॉर्थ टू वेस्ट। मैं ऐसे खड़ा हूं नॉर्थ की तरफ मुंह करके, मैं ईस्ट की तरफ घूम गया, मतलब मैंने क्या किया? टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। टर्निंग नॉर्थ टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इन दिस केस 2 राइट एंगल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, चाहे मैं क्लॉकवाइज घूमूं चाहे मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, I will get the same result. Now, मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात, मैं कंप्लीट एंगल की बात करूं तो टर्निंग 4 एंगल राइट एंगल क्या है? टर्निंग 4 राइट एंगल। ठीक है, कहीं से भी करो, नॉर्थ टू नॉर्थ, कैसे भी कर लो आप, नॉर्थ टू नॉर्थ, किसी डायरेक्शन से, नॉर्थ टू नॉर्थ। अच्छा, ये ईस्ट टू ईस्ट भी हो सकता है, साउथ टू साउथ भी हो सकता है, वेस्ट टू वेस्ट भी हो सकता है। ऐसे ही ये हर डायरेक्शन, अगर मैं नॉर्थ में खड़ा हूं तो साउथ में आ जाऊंगा, लेकिन मैं पहले से ईस्ट में खड़ा हूंगा तो मैं वेस्ट में आ जाऊंगा। ये आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, ये आपको खुद बनाने हैं। आई होप you have got clear cut idea of the
राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स टर्निंग नॉर्थ टू ईस्ट क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें अंतर क्या है अब देखना, मैं इसको मिटा रहा हूं, आई एम इरेजिंग इट। अब मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, मैंने यहां पे क्लॉकवाइज क्यों लिखा। देखो, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं फेस करके नॉर्थ की तरफ, ओके, एंड दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, दिस इज साउथ। अब मैंने क्या टर्न लिया? नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ टू ईस्ट, यहां पे दो केस होंगे। क्या केस होंगे? देखो, पहला केस क्लॉकवाइज और दूसरा केस एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा केस एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं नॉर्थ टू ईस्ट घूम गया, मुझे क्या जाना है? अगर मुझे बोला गया नॉर्थ टू ईस्ट घूमो, तो नॉर्थ टू ईस्ट में ऐसे भी घूम सकता हूं, लेकिन मैं नॉर्थ टू ईस्ट ऐसे भी तो घूम सकता हूं, नहीं घूम सकता हूं। मतलब अगर मैं नॉर्थ टू ईस्ट इस तरीके से घूमा हूं, कैसे? ऐसे घूमा हूं, ग्रीन से ही करते हैं, नॉर्थ टू ईस्ट ऐसे घूमा हूं, तब तो क्या हो गया? वन राइट एंगल। हाउ मेनी? वन राइट एंगल। बट मैं नॉर्थ टू ईस्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमा हूं, कैसे? पहले मैंने एक टर्न ऐसे लिया, नॉर्थ टू वेस्ट, फिर वेस्ट टू साउथ एंड साउथ टू ईस्ट, तब भी तो मैं इसी डायरेक्शन में आ गया हूं। फाइनली मैं इसी डायरेक्शन में आ गया हूं। जिस तरीके से मैं ऐसे खड़ा था, अभी भी वही मैं खड़ा हूं, उसी तरीके में खड़ा हूं। तो मैं क्या बोलूंगा? यहां पे वन राइट एंगल ट्रायंगल था, यहां पे मैंने लिए हैं थ्री राइट एंगल टर्न, थ्री राइट एंगल टर्न। तो आपको ये क्लियर कट होना चाहिए, आपको ये क्लियर कट होना चाहिए कि which direction in which we are moving. That's why if you are turning north to south, west to east, direction should be mentioned. हाँ, अगर if you are talking about the complete angle की बात कर रहे हो, कंप्लीट एंगल की बात कर रहे हो, आप नॉर्थ या मान के चलो आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो और आपने कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप साउथ की तरफ खड़े हैं, आपने कंप्लीट रिवोल्यूशन लिया, मतलब कंप्लीट एंगल बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हैं, आपने क्लॉकवाइज लिया या एंटी क्लॉकवाइज लिया, आप हमेशा नॉर्थ की तरफ ही आएंगे। बट लेकिन अगर आपने राइट एंगल टर्न लिया है तो आप यहां पे दिक्कत में आ सकते हैं। यू आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, आपने टर्न लिया राइट एंगल, पता नहीं किस डायरेक्शन में, तो कहां, यहां खड़े होंगे कि यहां खड़े होंगे। सो इन राइट एंगल वी शुड मेंशन ऑलवेज टर्न, और टर्न की किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। So let us revise once again. अब आपको क्लियर कट मीनिंग समझ में आ गया है। मैं आपको एक बार डायग्राम बना के और दिखा रहा हूं, किसका? कंप्लीट एंगल का और स्ट्रेट एंगल का। ये मेरा सी लिखा था यहां पे, ओके। नाउ लास्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वन राइट एंगल, ओके। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सॉरी ईस्ट। एक टर्न ऐसे, एक टर्न ऐसे, टू राइट एंगल, मतलब वन स्ट्रेट एंगल। नाउ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट,
एक ये टर्न, एक ये टर्न, एक ये टर्न, एक ये टर्न, मतलब ये कितना लिया हम लोगों ने, 4 राइट एंगल, 2 स्ट्रेट एंगल। कैसे, ये एक एंगल स्ट्रेट हो गया और एक एंगल ये स्ट्रेट हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 कंप्लीट एंगल, 1 कंप्लीट एंगल। तो ये चीज है, आई होप यू आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब आप देखो, मैं यहां से बात करूं तो 1 स्ट्रेट एंगल किसके बराबर है, 1 स्ट्रेट एंगल 2 राइट एंगल के बराबर है, ठीक है। सिमिलरली 1 कंप्लीट एंगल किसके बराबर है, देखो 1 कंप्लीट एंगल 2 स्ट्रेट एंगल और 4 राइट एंगल के बराबर है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। तो इट मीन्स अगर 1 राइट एंगल, इसकी बात करता हूं मैं, तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाता है, सीए। सीए मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, व्हाट, एक रिवोल्यूशन, कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो ये एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है। लेकिन यहां पे अगर मैं 4 पार्ट डिवाइड करूं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 पार्ट हो गए। 4 पार्ट हमको रिवोल्यूशन करने हैं, 4 पार्ट हमको रिवोल्यूट करने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लेकिन राइट एंगल में हमने केवल 1 पार्ट रिवोल्यूट किया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 1/4 रिवोल्यूशन किसके बराबर होता है, एक राइट एंगल के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, यहां पे हमने आधा रिवोल्यूट किया है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 1, ये बराबर क्या होता है, हाफ रिवोल्यूशन। और यहां पे हम बात कर सकते हैं 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब एक सर्कल, रिवोल्यूशन मतलब एक सर्कल पूरा। नाउ इफ वी see this concept of revolution or turning on the watch, then what we will get. अगर मेरे पास एक वॉच है, now I know यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 3, 1 2 4 5 7 8 10 11। दिस इज 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन है। सो मैंने बताया है 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में 4 राइट एंगल होते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, 1 वॉच का सर्कल, 1 वॉच, अगर बात करूं तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन है हमारे पास, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखो आप, 1 complete revolution. In watch we have got 1 complete revolution which is taken by our hands. जो ये hands होती हैं, ये hands होती हैं, ठीक। Now if you see अगर I divide this watch in such a way, तो ये फिगर ऐसे तो बन रहा है। देखो, इफ आई डिवाइड अवर फिगर इन सच अ वे, और मैं यहां लिख दूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सो इफ हमारी कोई हैंड, वी कैन से हॉर हैंड अगर हमारी यहाँ पे 12 पे है एंड मिनट हैंड हमारी 3 पे है, देन एंगल क्या होगा। अगर फर्स्ट केस में डिफाइन करूं, आवर हॉर हैंड इज फेसिंग नॉर्थ। व्हाट, फर्स्ट केस क्या है, जो हमारी हॉर हैंड है, हॉर हैंड है, वो कहां फेस कर रही है,
नॉर्थ की तरफ, और जो हमारी मिनट हैंड है, जो हमारी मिनट हैंड है वो कहाँ फेस कर रही है, वो फेस कर रही है ईस्ट की तरफ। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन हॉर हैंड एंड मिनट हैंड? देन एंगल बिटवीन हॉर हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा? एंगल बिटवीन क्या होगा? क्या होगा? वन राइट एंगल। क्या होगा? वन राइट एंगल। वन राइट एंगल, ये आपको पता होना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड। सिमिलरली इफ वी टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजिशंस, व्हाट अगर मेरी हॉर हैंड 12 पे ही रहे, मिनट हैंड यहां पे आ जाए तो कुछ और एंगल होगा, मिनट हैंड यहां पे आ जाए कुछ और एंगल होगा, ऐसे ना क्लॉकवाइज नापेंगे तो कुछ और एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे तो कुछ और एंगल होगा। ओके, एक तरीका है। ये सुइयां हैंड्स किसी भी एंगल पे हो सकती हैं, कहीं भी हो सकती हैं। हाउ? लेट अस सी। अगर हमारी हॉर हैंड 2 पर है, हॉर हैंड 2 पर है और मिनट हैंड 8 पर है, क्या क्या एंगल बना? क्या एंगल बना? स्ट्रेट एंगल बना कि नहीं बना? स्ट्रेट एंगल बना कि नहीं बना? ओके, स्ट्रेट एंगल बना कि नहीं बना? सिमिलरली अगर मैं इसको मिटा देता हूं, अगर ये बोला जाए हमारी हॉर हैंड 12 पे है, नाउ इट टेक्स 2 राइट एंगल। अगर वॉच की बात कर रहे हैं तो वॉच हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अगर हमारी वॉच ने, हमारी हॉर हैंड ने 2 राइट एंगल टर्न लिए तो हमारी हॉर हैंड यहां पे आ जाएगी। और अगर 3 राइट एंगल टर्न लिए हैं तो 3 टर्न लिए हैं तो यहां पे आ जाएगी। अगर 3 लिए हैं तो 1 लिया है तो यहां पे आ जाएगी। मतलब देखो, अगर 1 लिया है तो रेड से दिखा रहा हूं मैं, और अगर 2 लिए हैं तो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, और अगर 3 लिए हैं तो ब्लैक से ही। देखो आप, इट मीन्स व्हेन आवर हॉर हैंड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम 12 to 12, 12 पे थी, 12 से आ गई तो कितने राइट एंगल लिए होंगे इसने? 2 राइट एंगल लिए होंगे। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हॉर हैंड की पोजीशन कहीं भी हो सकती है। विद द हेल्प ऑफ दिस पोजीशन वी विल सी हाउ मच टर्न इट हैज टेकन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों समझ में आनी चाहिए कि मैं क्लॉकवाइज घूम रहा हूं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं। बिकॉज व्हेन वी टेक टर्न ऑफ राइट एंगल देन इट काउंट्स। अगर राइट एंगल का टर्न मैंने लिया है, मैं दोबारा बता देता हूं, मैं इस तरफ फेस करके खड़ा हूं और मुझे बोला गया राइट एंगल टर्न लो, राइट एंगल टर्न लो, तो मैं इधर टर्न करूं या इधर टर्न करूं, इट डिपेंड्स ऑन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मुझे 90 डिग्री टर्न लेना है तो डायरेक्शन शुड बी मेंशन्ड, अदरवाइज रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता होनी चाहिए। एंड मीनिंग ऑफ राइट एंगल राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड व्हाट complete angle should be quite clear to you, and you should be able to equate the value of right angle, straight angle in terms of revolution as well. Okay, hope you have enjoyed the session. So we will meet in next video with exercise. Till then, bye bye.